Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Sadaf Ayyub here from Metropolitan School. And it's math time for class 8. And beta, today we will start a very new, interesting and useful topic, logarithms. And beta, I know आपने अपने elder brother and sister से इस टॉपिक का नेम तो ज़रूर सुना होगा. Inshallah, today we will know what is logarithms. Beta, logarithm introduced by a Muslim mathematician Abu Musa al-Khwarizmi. Logarithm is a topic of mathematics which offer a quick way to perform multiplication and division of a larger number or a smaller number. Beta, in logarithm we use exponent or power. So beta, firstly we will know how to convert a larger number in exponential form. For this beta, we will move to our solution board. Now beta, we will solve question number 3 of exercise 6. Question is that write the following number in exponential form. 128 यहाँ पर आपको given है और हमें किस में कन्वर्ट करना है, exponential form में. Then beta, firstly we will find the factors of 128. और factors तो आपको find out करने आते हैं, तो हम 128 की क्या करेंगे बेटा, prime factor find out करेंगे. And beta, you know very well this is the pattern to finding factors of any number. तो बेटा अब हम 128 के यहाँ factors find out करेंगे. This is even number, so first factor is 2. Also even number. These are the factors of 128. 128 is equal to, count the factors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 times 2. Then beta, 2 कितने times repeated है? 7 times. Then we will put the exponent 7. क्योंकि 2 7 टाइम रिपीटेड है, तो अब हमने यहाँ क्या एक्सपोनेंट पुट कर दिया 7. दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 128. 128 की बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, 2 raised to the power of 7. दिस इज द आंसर. एंड बेटा यू हैव टू सॉल्व ऑल 4 parts of this question. Beta, see this a large number. This is the mass of the moon. And see this a very smaller number. This is the diameter of atom of hydrogen. And beta, the calculation of all these type of numbers, it's so difficult. So we will use a short way to write a very large and a very small number, that is called scientific notation. Beta, scientific notation basically is a product of two number, a multiplied by 10 raised to the power n. n is an integer, means beta n की replacement पे कोई भी value हो सकती है, but it will be integer, means beta ये value positive और negative हो सकती है. and beta a वो value है जिसे हम scientific notation में convert करेंगे. Now we will move to our solution board to know how can we convert a number in scientific notation. Now beta, we will solve question number 4 of exercise 6 from page number 80. Convert the following numbers to scientific notation. बेटा हमें इस नंबर को scientific notation में convert करना है. And beta, I have explained you the scientific notation is represented as the product of two numbers. हमें इसको convert करना है बेटा product of two numbers. Firstly बेटा copy down the number.
नाउ बेटा इस सम में आपको कोई डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, सो वी विल फाइंड द फर्स्ट लेफ्ट हैंड नॉन ज़ीरो डिजिट। यहाँ पर बेटा हम लेफ्ट साइड पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे और वो क्या है 5। देन वी विल पुट द डेसिमल आफ्टर 5। हम 5 के बाद डेसिमल पुट करेंगे 5 पॉइंट। देन राउंड ऑफ दिस नंबर टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। अब बेटा हम इस नंबर को 2 डेसिमल प्लेसेस से राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि बेटा मोस्टली हम आफ्टर डेसिमल 2 डेसिमल प्लेसेस यूज़ करते हैं। देन द सेकेंड फैक्टर इज 10। आपको बता चुकी हूँ कि साइंटिफिक नोटेशंस में बेटा सेकेंड फैक्टर 10 होता है। देन बेटा काउंट ऑल द नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। हमने डेसिमल यहाँ तक पुट किया है, यहाँ डेसिमल के बाद बेटा जितने भी नंबर्स हैं वो सब काउंट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमने यहाँ पर 9 डिजिट्स को जंप किया है। देन पुट द एक्सपोनेंट 9। दिस इज द आंसर and this form is called scientific notation. Then beta move forward to the second sum of this question. अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑलरेडी बेटा आपको डेसिमल पॉइंट नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर जब डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी गिवन है तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें भी बेटा फर्स्ट नॉन ज़ीरो लेफ्ट हैंडेड डिजिट्स देखेंगे और वो क्या है 3। लेफ्ट हैंड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है 3, तो ये डेसिमल बेटा हम मूव करवाएंगे कहाँ पर आफ्टर 3। देन ज़ीरोज़ को इग्नोर करेंगे 3 पॉइंट। गॉट माई पॉइंट। देन राउंड ऑफ दिस नंबर टू द 2 डेसिमल प्लेसेस 3.18 and ignore all the zeros. Then the second factor is 10. हमें पता है साइंटिफिक नोटेशन का सेकंड फैक्टर क्या होता है बेटा 10। देन यहाँ पर बेटा हम डेसिमल मूव करवा के कहाँ लेकर आए आफ्टर 3। तो बेटा जितने डिजिट्स आपने मूव किया दैट विल बी द पावर ऑफ 10। 1 2 3 हमने 3 डिजिट्स मूव किया था बेटा, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। देन अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एरोस की डायरेक्शन कहाँ पर थी राइट टू द लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई डेसिमल मौजूद नहीं था, कोई डेसिमल नहीं था ना हमारे क्वेश्चन में, तो हमने क्या किया था राइट साइड से मूवमेंट स्टार्ट की थी और हमने डेसिमल को कहाँ लिखा था आफ्टर 5। यहाँ बेटा आपके पास डेसिमल ऑलरेडी गिवन है और अब हम इस डेसिमल को कहाँ मूव करवा रहे हैं आफ्टर 3 और ये है हमारा लेफ़्ट टू द राइट। लेफ़्ट टू द राइट डायरेक्शन में बेटा हम मूव कर रहे हैं तो हमारी पावर और एक्सपोनेंट क्या होगी नेगेटिव। एंड दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस नंबर। Then beta move forward the question number 5. Convert the following numbers to ordinary notations. And beta in this question we have scientific notation and we will convert in the ordinary notation. Question number 4 में बेटा हमने ordinary notation को scientific notation में convert किया था and question number 5 में बेटा हम scientific notation को ordinary notation में convert करेंगे. It's so simple. Firstly copy down the sum. Then beta check the exponent and this number has positive exponent. Positive exponent नज़र आ रहा है आपको +6. Then beta copy down the first factor of this sum. इस क्वेश्चन के बेटा फर्स्ट फैक्टर कौन सा है 3.18. Copy down the first factor without decimal.
फर्स्ट फैक्टर को हमने कॉपी किया विदाउट डेसिमल, हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हुए डेसिमल पुट किया था, और सेकंड फैक्टर मींस 10 जो है वो ऐड किया था। अब हमें ये डेसिमल और फैक्टर ऑफ 10 हमें इन दोनों को रिमूव करना है इसमें से, तो हमने डेसिमल रिमूव कर दिया। 10 हमारे पास बेटा डेसिमल यहाँ गिवन है, तो हमने यहाँ से डेसिमल को मूव करवाना है 1 2 कितने डिजिट्स 6 डिजिट मूव करवाना है 3 4 5 6। हम इस डेसिमल को बेटा कहाँ लेकर आएंगे, यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 और 8 के तो प्लेसेस पे मौजूद था, लेकिन बाकी सब जो है प्लेसेस एम्प्टी है, तो जो एम्प्टी प्लेसेस हैं बेटा हम वहाँ पर ज़ीरोस पुट कर देंगे। लाइक दिस बेटा, और डेसिमल हमने कहाँ, इस नंबर के एंड में मूव करवा दिया। जो डेसिमल बेटा आफ्टर 3 हमारे पास मौजूद था, वो डेसिमल हमने कहाँ पर पुट कर दिया, एंड ऑफ दिस नंबर। The answer will be 318 and 4 times 0. Then move forward the second sum of this question. First you copy down the sum. Then beta write only first factor of this number. First factor क्या है बेटा 0.65 650 विदाउट डेसिमल पुट करेंगे हम यहाँ पर। गॉट माई पॉइंट। देन 10 तो हम कॉपी करेंगे नहीं, क्योंकि 10 ही को तो हमें रिमूव करना है यहाँ से। यहाँ बेटा हमारा एक्सपोनेंट -3 है, यहाँ पर हमारे पास +6 था और यहाँ पर -3 है, और -3 कन्वर्ट हुआ था बेटा हमारी मूवमेंट कैसे थी, लेफ्ट टू द राइट। लेफ्ट टू द राइट हमने मूवमेंट की थी, तो इस बार अब हम इसके क्या रेसिप्रोकल होगा, राइट टू द लेफ्ट, क्योंकि अब हम ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब हम राइट टू द लेफ्ट मूव करेंगे। हमारा डेसिमल यहाँ मौजूद है, यहाँ है, हम कितने डिजिट्स मूव करेंगे बेटा 3 डिजिट्स 1 2 3, और हम अपने डेसिमल को यहाँ लिख देंगे एंड ऑफ दिस नंबर। और जितने भी एम्प्टी स्पेसेस हैं वहाँ पर क्या करेंगे, पुट द ज़ीरोज़। The answer will be 0.00 and 065. एंड बेटा दिस नंबर हैज़ नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो हम इसका डेसिमल रिमूव नहीं करेंगे। और बेटा यहाँ पर चूँकि हमारे पास होल नंबर मौजूद नहीं है, तो होल नंबर के लिए बेटा हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। होल नंबर मौजूद नहीं है, तो हम होल नंबर के लिए यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। दिस इज द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ 0.65 into 10 raised to the power of -3. For solving values in logarithm method, we have different forms that is called logarithm notation. Look here, log base 2 64 is equal to 8, where 64 is called argument, 2 is base and 8 is exponent. Now beta move to our solution board to know how we convert any number in logarithm notations. Now beta move forward the another question of this exercise, and this is the question of 6. Convert the following number to logarithmic notations. बेटा हमारे पास यहाँ पर एक सम गिवन है, और इस सम को बेटा हमने किस में कन्वर्ट करना है, logarithmic notation में। This question बेटा we have 2 sides, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। और बेटा राइट हैंड साइड पे हमारे पास यहाँ पर एक बेस और एक्सपोनेंट गिवन है 8 रेज़ टू द पावर स्क्वायर। जब हम इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को कॉपी डाउन करते हैं, देन राइट
word log. This is the short form of logarithm. बेटा आपके पास जो बेस होगी, आप उस बेस का लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पर बेस क्या है 8. तो जो 8 है हमारा बेटा, हम वहाँ वो लॉग की बेस पे पुट करेंगे. देन दिस इज आर्गुमेंट. आर्गुमेंट को बेटा हम उसी प्लेस पर रहने देंगे 64. देन इक्वल टू, और एक्सपोनेंट, उस एक्सपोनेंट को बेटा हम आर्गुमेंट के साथ इस प्लेस पे लिखेंगे. क्या किया बेटा हमने बेटा लॉग के साथ बेस लिखी नंबर की, देन आर्गुमेंट को अपनी ही प्लेस पे रहने दिया. देन यहाँ पर हम बेस, चूँकि हमने यहाँ लॉग के साथ लिख दी थी, तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक्सपोनेंट बचा था, इसलिए हमने वो एक्सपोनेंट यहाँ कॉपी कर दिया. दिस इज द लॉगरिथमिक नोटेशन. Then move forward the second sum. Firstly copy down the sum, then write log. और यहाँ पर बेटा हमारे पास बेस और एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पर हमारे पास बेस 4 है. क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट उसी के ऊपर है, तो जिस पर एक्सपोनेंट होता है बेटा वही हमारी बेस होती है. तो इट्स मीन 4 इज द बेस ऑफ लॉग. देन बेटा हमने यहाँ क्या किया था, लॉग एंड बेस के बाद बेटा हमने आर्गुमेंट कॉपी किया था. देन यहाँ पर आर्गुमेंट क्या है 2. पुट द 2, साइन ऑफ इक्वालिटी. देन बेस तो हमने यहाँ लॉग के साथ कॉपी कर दिया. अब क्या यहाँ पर हमारे पास है एक्सपोनेंट 1/2. दिस इज logarithmic notation. So simple. Now beta we will continue the remaining question of this exercise in second part of this video.